Students, today we'll discuss the next topic of chapter structure of atom. The topic is quantum numbers. Student, you know that जब हम एटम के अंदर एंटर करते हैं तो what we got inside an atom? First of all we get shells. शेल के अंदर हमें मिलती हैं सब शेल्स. सब शेल्स के अंदर बेटा ऑर्बिटल्स, and orbital finally contain electrons which is present with either clockwise or anti-clockwise spin. So ये हम पहले करके आ चुके हैं. तो अगर मैं आपसे कहूं that if you want to find out the position of electron, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन फाइंड आउट करनी है, so पहले हमें पता करना पड़ेगा कि it belong to which shell. Then we have to find out it belongs to which subshell. Then we have to find out it belongs to which orbital and finally उसके स्पिन क्या है. तो यानी इलेक्ट्रॉन का जो कंप्लीट इंफॉर्मेशन है उसके रिगार्डिंग हमें 4 थिंग्स की रिक्वायरमेंट है: शेल, सबशेल्स, ऑर्बिटल एंड द स्पिन. These 4 things, these will be calculated with the help of specified numbers. These numbers are said to be the quantum number. So quantum number is a set of 4 numbers which tells us about shell, subshell, orbital of electron and finally spin of electron. सो इलेक्ट्रॉन के रिगार्डिंग जो कंप्लीट इंफॉर्मेशन है वो हमें इन्हीं 4 नंबर से फाइंड आउट होगी, क्योंकि हमें सिर्फ 4 थिंग्स की रिक्वायरमेंट है: फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड दिस वन इज फोर्थ. फर्स्ट वी वांट टू नो द शेल टू विच द इलेक्ट्रॉन बिलोंग, देन वी वांट टू नो द सबशेल टू विच द इलेक्ट्रॉन बिलोंग, फिर बेटा ऑर्बिटल और फाइनली स्पिन. तो 4 थिंग्स की रिक्वायरमेंट है, इसीलिए जो आपके क्वांटम नंबर्स हैं दीज आर 4 क्वांटम नंबर. सो आज के लेक्चर में हम करेंगे क्या? वी विल स्टडी अबाउट द क्वांटम नंबर्स, all type of quantum numbers, what are their values and what are their numericals. So I will start with the first quantum number, that is principal quantum number. First quantum number is principal quantum number. Beta, the symbol of principal quantum number is n. This is the quantum number which tells us about the shell to which electron belongs. ये बेटा हमें शेल के बारे में बताएगा कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है it belongs to first shell, it belongs to second shell, it belongs to third shell. कैसे? Just see out. The symbol of principal quantum number is small n. So just see out. If the value of n is 1, it means the electron is in first shell. If the value of n is 2, electron is in second shell. Value of n is 3, the electron is in third shell. Value of n is 4, the electron is in fourth shell. Similarly बेटा अगर n की वैल्यू 5 होगी तो इलेक्ट्रॉन आपका 5th शेल में होगा. देन वैल्यू ऑफ n इज 6, 6th शेल. वैल्यू ऑफ n इज 7, इलेक्ट्रॉन इज इन 7th शेल. एंड इफ द वैल्यू ऑफ n इज इन्फिनिटी, इट मीन्स आई विल से outside an atom. Okay, these shells, these are also named as K, L, M, N, O, P and Q. सो बेटा ये हमने स्टडी किया आपका पहला क्वांटम नंबर, फर्स्ट क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो डायरेक्टली हमें किसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन देगा? इट गिव्स अस इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द शेल. सो कहीं पर भी फ्यूचर में अगर आपको शेल को इंडिकेट करना है तो आप हमेशा n से इंडिकेट करोगे. इन एनी न्यूमेरिकल, इन एनी फॉर्मूला रिगार्डिंग द फ्यूचर, किसी भी टॉपिक में व्हेनेवर शेल को इंडिकेट करना है तो हम किस क्वांटम नंबर को यूज करेंगे? n को यूज करेंगे. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्लियर? सो दिस इज अबाउट द फर्स्ट क्वांटम नंबर, दैट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर.
Students, after completing the first quantum number, that is the principal quantum number, now we'll discuss the second quantum number, that is said to be secondary quantum number, subsidiary quantum number, azimuthal quantum number, and one more name is angular quantum number. But before I start, just see out the symbolic representation. अगर हम symbolic representation की बात करें, so this will be represented by L, small l, ये आपको ध्यान रखना है. बट अब एक थोड़ा सा कंफ्यूजन है जिसको अभी हम क्लियर करेंगे. द थर्ड क्वांटम नंबर इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर. दिस क्वांटम नंबर हैज द सिंबल स्मॉल एम एल. स्मॉल एम के बेस में एल है, तो कंफ्यूज मत होना. इफ ओनली एल देन इट इज अ सेकेंडरी क्वांटम नंबर, और अगर एम के साथ एल है देन दिस विल बी द थर्ड क्वांटम नंबर, दैट इज अ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर. सो स्टूडेंट, नो नीड्स टू कंफ्यूज इन बिटवीन द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन. तो चलिए, नाउ वी विल डिस्कस रिगार्डिंग द सेकेंड क्वांटम नंबर. तो ऑल ऑफ यू नो बेटा कि जब आप शेल्स में एंटर करोगे देन यू विल गेट द सब शेल्स, एंड ऑल ऑफ यू नो दैट दीज सब शेल्स एज फार एज आर सिलेबस इज कंसर्न, S, P, D and F, 4 types. S, it stands for sharp, P stands for principal, D stands for diffused, और बेटा F जो है it stands for fundamental. तो आपकी बेसिकली 4 टाइप की सब शेल है यूनिवर्सल बाई. तो ये जो आपका क्वांटम नंबर है, सबसे पहले तो ये बताएगा कि एक पर्टिकुलर शेल में कितनी सब शेल्स हैं. क्लियर? सपोज 2 सब शेल हैं, 3 सब शेल है. सेकेंडली, कौन सी टाइप की सब शेल है, S है, P है, D या F है. सो दिस इज द क्वांटम नंबर विच टेल्स अस, नंबर 1, द नंबर ऑफ सब शेल्स इन अ गिवन शेल. किसी भी शेल में कितनी सब शेल्स हैं, एंड सेकेंडली विच टाइप ऑफ सब शेल इज देयर. कौन से टाइप की सब शेल है, दैट इज वेदर इट इज S, P, D, F. दिस इज द वे. गॉट इट नाउ? नो डाउट जो आपकी सब शेल है वो F के बाद भी होती है. आई हैव टोल्ड यू रिगार्डिंग भी G, H चलता है, बट आपको सिलेबाई में किस में करना है, रिगार्डिंग द F, क्योंकि हमारी सारी डिटेल सिलेबस वो F तक ही है, ये ध्यान रखना है. G और H के बारे में थोड़ा बेसिक अंडरस्टैंडिंग रखनी है, बट वो सिलेबस में नहीं है. मीन्स जितना भी हम वर्कआउट करेंगे रिगार्डिंग F ही करेंगे. सो जस्ट सी फर्स्ट द मैथमेटिकल फॉर्मूला. सो फॉर्मूला जो आपको ध्यान करना है, L इज इक्वल टू 0 to n-1, where n stands for प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. एक तो फॉर्मूला ये है. गॉट इट? सेकेंडली, वन थिंग मोर यू हैव टू रिमेंबर कि L की जो आपकी वैल्यूज होंगी 0, 1, 2, 3. इफ इट इज 0 तो आपकी S सब शेल होगी, 1 में यू विल गेट द P सब शेल, 2 में D, 3 में F, और सिमिलरली अगर आगे जाओगे तो 4 में आपकी G हो जाएगी. बट ध्यान रखना, आपको जो स्टडी करनी है दैट यू हैव टू डू ओनली अप टू S, P, D एंड F. तो कौन सी टाइप की सब शेल है हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि भाई S प्रेजेंट है, P प्रेजेंट है, D या F. उसके लिए हम L की वैल्यूज देखेंगे कौन सी है. 0 में S, 1 में P, 2 में D और 3 में F. और ये L की वैल्यूज कैसे आएंगी, ये आएंगी इस फॉर्मूले से, L इज इक्वल टू 0 to n-1, जहाँ पर आपका n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है. क्वांटम नंबर जो आपको शेल के रिगार्डिंग बताएगा. मीन्स कि अगर आप फर्स्ट शेल में काम करोगे तो n आपका 1 हो जाएगा, सेकेंड शेल में बेटा n 2 होगा, फॉर द थर्ड शेल आपका n 3 हो जाएगा, फॉर द फोर्थ शेल n इज 4, फॉर द फिफ्थ शेल n 5, सिक्स्थ के लिए बेटा n 6, और सेवन्थ के लिए इट विल बी n इक्वल टू 7. गॉट इट? तो ये मैंने आपको बताया. अब इस पर पर्टिकुलरली वर्क करते हैं. सो आई स्टार्ट इट, जस्ट सी आउट. सो नाउ वी हैव टू फाइंड आउट, क्या फाइंड आउट करना है कि किस शेल में कितनी सब शेल है. गॉट इट? और कौन से टाइप की सब शेल है. तो आई विल स्टार्ट विद द फर्स्ट शेल. अगर हम फर्स्ट शेल में वर्कआउट करें, इन द फर्स्ट शेल ऑल ऑफ यू नो n की वैल्यू 1 होगी. तो L का जो फॉर्मूला है वो यहाँ मैं एक बार फिर से नोट कर रहा हूँ. L इज इक्वल टू 0 to n-1. 0 से शुरू होकर n की एक वैल्यू कम करनी है, वहाँ तक जाना है. तो n 0 करोगे तो यहाँ पर L की सिर्फ एक वैल्यू आएगी 0. क्यों? स्टार्ट आपको 0 से करना है तो 0 नहीं करा. फिर आपको n में से एक वैल्यू कम करनी है, तो n की वैल्यू 1 है
तो 1 - 1 दोबारा से क्या आएगा 0, मीन्स हमारे पास एक ही वैल्यू होगी L 0. नाउ सिंस वी आर हैविंग ओनली वन वैल्यू, सो वी कैन से दैट वी आर हैविंग ओनली वन सबशेल. गॉट इट नाउ. अब इस सबशेल का नाम कैसे फाइंड आउट करेंगे? यू नो दैट L इज इक्वल टू 0 1 2 3. अगर L का वैल्यू 0 है देन इट इज एज सबशेल. 1 में बेटा P, 2 में D और 3 में F. अब यहाँ पर देखिए द वैल्यू ऑफ L इज 0, इट मीन्स हमारी जो सबशेल है वो S है. एंड सिंस ये N 1 को बिलोंग करती है, फर्स्ट शेल को बिलोंग करती है, तो इसका जो कंप्लीट नेम होगा दैट इज 1S. ये भी आपको सीखना है. नाउ विल मूव टू द सेकेंड शेल. फॉर द सेकेंड शेल N आपका 2 है, तो L हो जाएगा 0 और 1. इसी फॉर्मूले से 0 से शुरू करना, सो हैव स्टार्टेड इट फ्रॉम द 0, और N में एक वैल्यू कम करना है, वहाँ तक जाना है. तो 2 में से अगर आप 1 माइनस करोगे तो 1 आएगा, मीन्स मुझे 1 तक जाना है. सो आई विल गेट द 2 वैल्यूज. ड्यू टू 2 वैल्यूज आई कैन से दैट आई विल गेट द 2 सबशेल्स. तो कौन कौन सी हैं? L 0 होगा तो S, 1 में P. अब ये किसको बिलोंग कर रही है? सेकेंड शेल को बिलोंग कर रही, मीन्स N 2 है. सो कंप्लीट नेम इज 2S एंड 2P. सिमिलरली हम थर्ड शेल में वर्कआउट करते हैं. फॉर द थर्ड शेल बेटा N इज 3, सो L आई विल राइट 0 1 2. नाउ आई विल गेट 3 वैल्यूज, सो आई विल से कि यहाँ पर हमें 3 सबशेल्स मिलेंगी और उनका नेम सेम इस वैल्यू के अकॉर्डिंग. 0 में S, 1 में P और 2 में D. अब इसका नाम कैसे करेंगे आप? N अगर 3 है मीन्स थर्ड शेल, सो इट विल बी 3S, दिस विल बी 3P और ये आपका बेटा 3D. नाउ फोर्थ में आइए. अगर आप फोर्थ शेल में वर्कआउट करोगे, इन द फोर्थ शेल N 4, L जो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला आना चाहिए 0 1 2 3. बट मैंने आपको कहा था दैट 11th के सिलेबस में L का जो मैक्सिमम वैल्यू आपको लेके चलना है 11th और 12th के सिलेबस में, वो हमें मैक्सिमम 3 लेके कितना लेके चलना है? 3. तो यहाँ 3 से ज़्यादा नहीं हुआ, ये ध्यान रखिएगा. आगे आने वाले क्वांटम नंबर में 3 से ज़्यादा होगा तो 3 नहीं लेना है. ये पॉइंट अभी आपको बता दिया ताकि आगे आप कंफ्यूज ना हो. देखिए मैक्सिमम 3 है, इट मीन्स यहाँ 3 है, कोई इशू नहीं. तो अब टोटल 1 2 3 4 वैल्यूज़ हैं. सो आई विल से कि यहाँ पर मेरे को बेटा आई विल गेट 4 सबशेल्स. सो नेम 0 में S, 1 में P, 2 में D और 3 में F. अब ये फोर्थ शेल को बिलोंग कर रहे हैं, सो दीज आर नेम्ड एज 4S, 4P, 4D और 4F. तो ये डिस्कशन रिगार्डिंग फर्स्ट 4 सबशेल्स का, सॉरी फर्स्ट 4 शेल्स और उनकी सबशेल्स का. नाउ वी विल मूव टुवर्ड द नेक्स्ट वन, 5th 6th और 7th को और देखते हैं. जस्ट सी आउट. सो 5th शेल अगर हम करें, इन द 5th शेल N का वैल्यू बेटा 5 होगा. अब जो पॉइंट मैंने पहले बताया था मैक्सिमम वैल्यू का, वो यहाँ पे आएगा. तो L की वैल्यू आपकी होनी चाहिए 0 1 2 3. बट वी नो L का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या है? वो आपका यहाँ पर बेटा 4 आएगा, वो वैल्यू 3 है. मीन्स मैं अब 4 को कंसिडर नहीं करूँगा. गॉट इट? ये ध्यान रखना है. सिमिलरली अगर आप 6th शेल में जाओगे तो N आपका 6 होगा, L कितना आना चाहिए? 0 1 2 3 4 5. बट मैक्सिमम वैल्यू 3 है, तो इन दोनों को आप छोड़ देंगे. सिमिलरली जब आप 7th शेल में जाओगे, N इक्वल टू 7, ये बेटा 6 है, इसको देख लेना, दिस इज 6. जब आप N 7 में जाओगे तो L की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0 1 2 3 4 5 6. बट मैक्सिमम वैल्यू 3 है, तो यहाँ पर भी आप कहाँ तक लेकर जाओगे? 0 1 2 3. तो ये ध्यान रखना है कि आपकी L की मैक्सिमम वैल्यू 3 है. अब चले 5th शेल में आते हैं. 5th शेल में आपके पास 4 वैल्यूज़ 1 2 3 4, मीन्स हमारे पास 4 सबशेल. सिमिलरली जब आप 6th शेल में आओगे तो 1 2 3 4, अगेन 4 वैल्यूज़ 4 सबशेल. जब आप 7th शेल में आओगे अगेन 4 वैल्यूज़ 0 1 2 3, तो आई विल से 4 सबशेल. नेम क्या होगा? अब ये जो आपकी सबशेल है सेम 0 में S, 1 में P, 2 में D और 3 में F. सेम आई विल राइट हेयर SPDF. सेम आई विल राइट हेयर SPDF. अब ये वाली जो सबशेल है ये बिलोंग करती हैं N5 यानी 5th शेल को. सो दीज आर नेम्ड एज 5S, 5P, 5D, 5F. अब ये बिलोंग करती है 6th शेल यानी N6. सो 6S, 6P, 6D, 6F. सिमिलरली ये बिलोंग करती है N7 यानी 7th शेल को. सो दीज आर नेम्ड एज 7S,
7p 7d और 7f। तो यहाँ पर आपने देखा कि विद द हेल्प ऑफ सेकेंडरी क्वांटम नंबर हमने क्या फाइंड आउट किया। किसी भी शेल में देखो, जैसे 5th शेल में हमने फाइंड आउट किया कितनी सब शेल है, तो सिंपल जितनी एल की वैल्यूज़ होंगी उतनी आपकी सब शेल, और उनकी नेमिंग कैसे करनी है, 0 में s, 1 में p, 2 में d और 3 में क्या हो जाएगी f। और इन सब शेल्स के साथ ये जो पहला नंबर इंडिकेट होता है, बी क्लियर, ये फर्स्ट नंबर इंडिकेट होता है शेल का। ध्यान रखिएगा, ये आपकी 5f है सपोज, तो 5f में ये जो 5th है ये आपका शेल का नंबर है, यानी n5, और f आ गया तो l ऑलरेडी क्या हो गया 3। ये ज़रूर ध्यान रखना है, जब भी आप सब शेल को डिनोट करोगे उसमें हमेशा 2 होंगे आपके, जो सेकंड होगा वो सब शेल को डिनोट करेगा फर्स्ट शेल को। जैसे मैंने लिखा 6d, तो ये 6 क्या है, ये शेल नंबर 6 को बिलोंग करता है, मीन n तो 6 होगा, और d के लिए l की वैल्यू आपको पता है 2। तो यहाँ पर बी क्लियर, एक बार फिर से बता रहा हूँ, ये क्वांटम नंबर आपको क्या बताएगा, नंबर 1 ये बताएगा आपको किसी भी शेल में टोटल नंबर ऑफ सब शेल कितनी है। सेकेंडली आपको बताएगा विच टाइप ऑफ सब शेल इज क्लियर, कौन से टाइप की सब शेल है, मीन्स इट इज एस, पी, डी या एफ। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एल, ये आपको लेके चलना है 3 इन योर सिलेबस, 3 से ज़्यादा बिल्कुल नहीं है। गॉट इट। और एक कन्फ्यूज़न मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ जो आप आगे फेस करोगे, कि ये जो सेकेंडरी क्वांटम नंबर है जिसको हम स्टडी कर रहे हैं, सेकेंडरी क्वांटम नंबर, इसका जो सिंबल है वो है स्मॉल l। जो आपका थर्ड क्वांटम नंबर आएगा दैट इज सेड टू बी द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, बेटा उसका जो सिंबल होता है वो होता है ml। तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, अगर l सिर्फ अकेला लिखा हो तो ये आपका सेकेंडरी क्वांटम नंबर होता है, और m के साथ लिखा गया हो तो ये होता है आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का सिंबल m भी होता है। खैर m से कंफ्यूजन नहीं आएगा, कंफ्यूजन आएगा जब हम ml लिखते हैं। तो ये l देखकर हमारे मन में आता है डाउट कि सेकेंडरी क्वांटम नंबर है, बिल्कुल नहीं। अगर l अकेला लिखा हुआ है तो सेकेंडरी क्वांटम नंबर है, अगर वो m के साथ लिखा हुआ है तो वो आपका थर्ड क्वांटम नंबर। सो स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट योर second quantum number, that is secondary quantum number. The third quantum number is magnetic quantum number. The symbol is small m. So बेटा अब ये क्वांटम नंबर हमें दो चीजें बताएगा। नंबर 1, this quantum number tells us about number of orbitals in a subshell। आपको अच्छी तरह से एक सीक्वेंस को ध्यान रखना है कि शेल के अंदर सबशेल, सबशेल के अंदर ऑर्बिटल, ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन। सो ये क्वांटम नंबर में बताएगा कि दिस टेल्स अस अबाउट द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ सबशेल एंड द ऑर्बिटल टू विच द इलेक्ट्रॉन बिलोंग्स। इलेक्ट्रॉन किस पर्टिकुलर ऑर्बिटल में है। तो जैसे आपने जब सेकेंडरी क्वांटम नंबर किया था बेटा, उसने आपको बताया था कि कितनी सबशेल और किस सबशेल में इलेक्ट्रॉन होगा। सो ये आपको क्या बताएगा, कितने ऑर्बिटल और किस ऑर्बिटल में आपका इलेक्ट्रॉन है, दैट यू हैव टू रिमेंबर। सो फॉर्मूला देखते हैं, m इज इक्वल टू -L2 प्लस L वाया 0 से होके। सो आपने भी स्टडी कर रखा है बेटा, हमारे पास सिर्फ 4 सबशेल्स हैं। द सबशेल्स आर S, P, D एंड F। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। S के लिए बेटा L की वैल्यू क्या होगी, 0, P के लिए L की वैल्यू 1, D के लिए L की वैल्यू 2 और F के लिए L की वैल्यू हो गई 3। क्लियर। अब इन सबशेल्स में ऑर्बिटल निकालने हैं। वैसे तो मैं ऑर्बिटल आपको पहले बता चुका हूं। ऑर्बिटल आर कंसेक्यूटिव ऑड नंबर 1, 3, 5 एंड 7। S में एक ऑर्बिटल, P में 3 ऑर्बिटल्स। मैं लिख भी देता हूं, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में शॉर्ट में बताया था, कंसेक्यूटिव ऑड नंबर था 1 ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल, 5 ऑर्बिटल, 7। सिमिलरली आगे कंटिन्यूटी में रहेगा ये। बट अब मैथमेटिकली कैसे फाइंड आउट करेंगे, सी आउट। इफ L इज 0, द वैल्यू ऑफ M इज -L से +L। तो बेटा 0 का तो कोई माइनस और प्लस होता नहीं है, तो वैल्यू क्या रहेगी, 0। 0 मीन्स M की एक वैल्यू आई है,
इट मीन्स इट हैज वन ऑर्बिटल। हाउ मेनी ऑर्बिटल? वन ऑर्बिटल। एस सबशेल में एक ऑर्बिटल। नो पी सबशेल में काम करते हैं। पी में बेटा एल की वैल्यू आपकी 1 होगी, और अगर आप फॉर्मूले में पुट करोगे तो -1 से +1, -1, (0, +1, ये बड़ा ध्यान से करना है आपको। सो हाउ मेनी ऑर्बिटल? सी टोटल कीजिए वैल्यूज का। एक वैल्यू -1 है, एक 0, एक +1, 3 वैल्यूज आ गई। मीन्स आई एम हैविंग 3 ऑर्बिटल्स। मेरे पास 3 ऑर्बिटल्स। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इन ऑर्बिटल्स के नेम px, py और एंड pz। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? और इनकी वैल्यूज अब आपके सामने m की वैल्यूज हैं, तो इसमें कौन सी वैल्यूज ध्यान करना है कि pz में जो m की वैल्यू होगी वो 0, pz के लिए m की वैल्यू 0, px और py में +-1, +-1। इसका मीनिंग क्या है बेटा? अगर ps में +1 लिखोगे तो py में -1 लिखोगे। क्लियर? और अगर px में -1 लिखोगे तो py में +1। यहां पर क्योंकि एक ही ऑर्बिटल है तो उसका नाम एज इट इज रहेगा जो सबशेल का s, और उसकी वैल्यू क्या रहेगी? m की 0। सो ये मैंने आपको m की वैल्यूज ऑर्बिटल में साथ के साथ बता दी कि अगर आपसे कोई पूछे भाई px में वैल्यू बताओ m की मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, सो आप कहोगे +-1, मीन्स आइदर +1 और -1। सिमिलरली py में अगर वो पूछता है देन यू विल टेल सर +1 और -1। pz में अगर पूछता है 0। क्लियर? चलिए, सो ये हमने किया रिगार्डिंग द p। अब स्टडी करते हैं d। l की वैल्यू क्या है? 2। ठीक है, थोड़ा स्पेस क्रिएट करते हैं यहां पे। हमने अभी तक किस किस के लिए किया है? l 0 के लिए कर लिया, ये हमारा हो गया, ये हो गया d के लिए। अब इसमें l अगर आपका 2 है तो m की वैल्यूज क्या आएंगी बेटा? -2, -1, 0, +1, +2। इन वैल्यूज को टोटल कीजिए, आराम से लिखते हैं। -2, -1, 0, +1, +2। हाउ मेनी वैल्यूज आर देयर? 1, 2, 3, 4 एंड 5 वैल्यूज। मीन्स आई एम हैविंग हाउ मेनी ऑर्बिटल्स? 5 ऑर्बिटल्स। सो डी में आपके बेटा 5 ऑर्बिटल्स, जस्ट लाइक दैट। क्लियर? अब इनके नेम्स बहुत इजी हैं। द फर्स्ट यू विल राइट dxy। इन वैल्यूज को थोड़ा शॉर्ट कर लेते हैं या इनको नीचे ही नोट कर लेते हैं। m इज इक्वल टू -2, -1, 0, +1, +2। फर्स्ट जो आपका d का ऑर्बिटल है dxy, dyz, dzx। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये आपको ध्यान रखना है। देन dx² - y² और लास्ट में dz²। ये बेटा लर्न कर रहे हैं जैसे आपने अभी p में किया था। p में क्या था आपकी? m की वैल्यू क्या आई थी? -1, 0, +1, 3 ऑर्बिटल्स। सो उनके नेम क्या थे? These are named as px, py and pz. So these are the name of d orbitals. s में s ही रहेगा क्योंकि एक ऑर्बिटल है। ठीक है, s का कोई इशू ही नहीं था। s में l 0 था तो m की वैल्यू 0, मीन्स एक ही ऑर्बिटल आया मेरे पास, तो उसको मैं s ही कहूंगा, कोई स्पेशल नेम मैं उसको नहीं दूंगा। स्पेशल नेम कब देते हैं? जब टाइप्स में काफी ज्यादा हो। तो p के ऑर्बिटल के नेम आपको क्लियर। d के एक बार मैं फिर से बोलता हूं। द नेम ऑफ d ऑर्बिटल dxy, dyz, dzx, dx² - y² एंड dz²। अब इनकी जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यूज हैं वो ये हैं। कैसे लर्न करें? सबसे पहले dz² में 0, यहां पर भी pz में 0 किया था। देखो मैं साथ के साथ बता रहा हूं, कोई इशू नहीं रहेगा, दोबारा से रिवाइव भी हो जाएगा। px py में क्या किया था आपने? +-1, +-1। यहां पर कैसे करेंगे? बहुत ईजी है, कुछ नहीं करना आपको। +-2, +-1। क्लियर? क्या लिखा मेरा मैंने? +-2, +-1, देन अगेन +-1, +-2। अब इसका मीनिंग क्या है? जो आपकी dxy की वैल्यू है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, +2 भी हो सकती है और -2 भी। dyz +1 भी हो सकती है और -1 भी। dzx +1 भी हो सकती है और -1 भी। सिमिलरली dx² - y² +1 और -1।
सो ये आपको लर्न करना है, वेरी इंपॉर्टेंट। सो यहां से देखिए हम डी सब शेल से चले थे, एल की वैल्यू 2, एम की कितनी वैल्यूज आई 1 2 3 4 5, सो हाउ मेनी ऑर्बिटल्स 5 ऑर्बिटल्स। पी में आपका एल का वैल्यू क्या था 1, तो एम की 3 वैल्यूज आई, देयरफॉर वी गेट 3 ऑर्बिटल्स। क्लियर। सो ये हमने स्टडी किया रिगार्डिंग कि एस में कितने ऑर्बिटल होते हैं, पी में, डी में। अब हम स्टडी करते हैं एफ में। एफ में बेटा मैं क्लियर कर दूं, एफ जो सबशेल है वो अभी रिगार्डिंग द ऑर्बिटल्स के नेम में रिसर्च लेवल पे है, तो यहां पर हम ऑर्बिटल्स के नेम नहीं करेंगे, सिर्फ उनका नंबर स्टडी करेंगे। कैसे, जस्ट सी आउट। एफ के लिए जो आपकी वैल्यू है एल की 3, सो एम की वैल्यूज क्या आएंगी -3 -2 -1 0 +1 +2 +3। इन वैल्यूज को टोटल करोगे, दीज आर 7 वैल्यूज। 7 वैल्यूज मीन्स आई एम हैविंग 7 ऑर्बिटल्स। कितने ऑर्बिटल्स हैं मेरे पास, 7 ऑर्बिटल्स। सो जस्ट इनको ऐसे ड्रॉ करेंगे, दीज आर 7 ऑर्बिटल्स। बट इनके जो नेम है वो आपके सिलेबस में अभी नहीं है। आपको नेम किनके करने हैं, p ऑर्बिटल और d ऑर्बिटल, दैट यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग वेरी क्लियरली। सो बेटा ये जो क्वांटम नंबर है, इससे आपने भी देखा कि आप सबशेल से चले s p d और f। सबशेल से आप किस पे पहुंचे, ऑर्बिटल्स पे, और हर पर्टिकुलर ऑर्बिटल का मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आपने फाइंड आउट किया कि px का मैग्नेटिक क्वांटम नंबर +1 -1, py का +1 -1, dxy +2 -2, dyz +1 -1, dzx +1 -1, और यू कैन से +-1, dx² y² +-2, dz² 0। सो ये काफी इंपॉर्टेंट है जो आपको लर्न करना है। नाउ ऑर्बिटल्स हो गया, नाउ विल शिफ्ट टू द फोर्थ, दैट इज स्पिन क्वांटम नंबर। फोर्थ क्वांटम नंबर इज स्पिन क्वांटम नंबर। The symbol of this quantum number is either S or ms. This quantum number tells us about the spin of electron. ये बेटा हमें इलेक्ट्रॉन की स्पिन के रिगार्डिंग बताएगा। If the spin is clockwise, S is +1/2, और जो आपका इलेक्ट्रॉन होगा that is said to be the alpha electron. And if the spin is anti-clockwise, value of S -1/2 and it is said to be बीटा इलेक्ट्रॉन। क्लियर। सो और एक चीज और, ये तो आपने स्पिन के रिगार्डिंग पता किया कि +½ कब होगी और -½ कब होगी स्पिन। सेकेंडली, इन वन ऑर्बिटल हम मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं, ये आपको रिमेंबर है। जैसे ये एक ऑर्बिटल है, इट कंटेन ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स विच मस्ट बी ऑफ अपोजिट स्पिन। उनकी स्पिन क्या होनी चाहिए बेटा, अपोजिट। मींस आई विल राइट स्पिन +1/2, सेकेंड की स्पिन क्या हो जाएगी, -1/2। ये देखिए, दिस इज स्पिन +1/2 और बेटा दिस वन इज -1/2। क्लियर। सो पहली स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, दूसरा एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन डालने हैं, 2, और दोनों की स्पिन अपोजिट। थर्ड थिंग, इफ वन ऑर्बिटल कंटेन्स 1 इलेक्ट्रॉन। ये तो आपने कर लिया कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो स्पिन अपोजिट होगी। बट अगर एक ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन है, देन रिमेंबर उसकी स्पिन क्लॉकवाइज भी हो सकती है और एंटी क्लॉकवाइज। रिमेंबर करना है, स्पिन इज +1/2 और -1/2। इफ एन ऑर्बिटल कंटेन 1 इलेक्ट्रॉन, बी रिमेंबर स्पिन में बी +1/2 और -1/2। एंड इफ कंटेन 2 इलेक्ट्रॉन, तो स्पिन +½ एंड -½ सो ये हमने स्टडी किया अभी रिगार्डिंग द स्पिन क्वांटम नंबर, जिसने आपको स्टडी करके बताया कि स्पिन होगी, उसकी वैल्यू 1 ऑर्बिटल में क्या, सॉरी, एक ऑर्बिटल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन है देन क्या स्पिन होगी, अगर एक ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन है तो क्या स्पिन होगी। अब बिफोर वी गोइंग टू द मैथमेटिकल पार्ट, एक बार बेटा हम सभी क्वांटम नंबर्स को शेल के अकॉर्डिंग स्टडी करेंगे। जस्ट सी आउट। नाउ आई विल ड्रॉ अ बिग फिगर
that is complete set of all quantum numbers. सभी क्वांटम नंबर हम इकट्ठे चेक करेंगे. सो बेटा हम शेल से स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट शेल ध्यान से देखना है. दिस इज द फर्स्ट शेल. फर्स्ट शेल द वैल्यू ऑफ एन इज 1. सो एल की वैल्यू आपने 0 निकाली थी. 0 मीन्स हमारी एक सब शेल थी 1s. क्लियर, ये उसका नेम हो गया बेटा. एल की वैल्यू 0 है तो एम की वैल्यू भी क्या थी 0. मीन्स हमारे पास एक ऑर्बिटल. और बेटा एक ऑर्बिटल में आप मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन डाल सकते हो? 2 इलेक्ट्रॉन लाइक दैट. तो स्पिन क्या होगी? +1/2 कॉमा -1/2. इस इलेक्ट्रॉन की स्पिन +1/2, इस इलेक्ट्रॉन की स्पिन -1/2. ओके, चलिए नाउ सेकेंड शेल. फॉर सेकेंड शेल बेटा n की वैल्यू 2, l इज इक्वल टू 0 एंड 1. यू रिमेंबर हमने किया था. L 0 में नेम था 2s, 1 में नेम था 2p. अब बेटा दो सब शेल आपकी सेकेंड शेल में. अब L अगर 0 है तो m की वैल्यू क्या आएगी 0, और L की वैल्यू 1 है तो m क्या आएगा -1, 0 और +1. सो मीन्स 2s में एक ऑर्बिटल और 2p में आपके 3 ऑर्बिटल्स. 1 ऑर्बिटल इन 2s एंड 3 ऑर्बिटल्स इन 2p. सो टोटल हमारे कितने ऑर्बिटल्स आए? 4 ऑर्बिटल्स सेकेंड शेल में. और सबशेल कितनी बेटा? 2 सबशेल्स. चलिए अब ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डालने हैं. ये बेटा एक ऑर्बिटल है, इसमें हम 2 इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं. तो स्पिन क्या आएगी बेटा? +1/2 -1/2. यहां कितने इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल है? 3 ऑर्बिटल्स. सो हम मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं. कैसे? 1 2 3 4 5 6. तो स्पिन इज 3 इलेक्ट्रॉन की स्पिन +1/2 3 +1/2 एंड 3 -1/2. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो टोटल इलेक्ट्रॉन देखो बेटा सेकेंड शेल में कितने हुए? 6 + 2 8 इलेक्ट्रॉन्स. अब 8 में से 3 + 1 4 की स्पिन +1/2 और 4 की स्पिन -1/2. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? एनी डाउट? और क्योंकि +1/2 स्पिन -1/2 को कैंसिल करती है तो नेट स्पिन 0. ये ध्यान रखिए, नेट स्पिन की अगर बात की जाए 0, यहां पर भी जो नेट स्पिन होगी वो क्या होगी? 0, बिकॉज +1/2 स्पिन इज कैंसल्ड बाई -1/2. तो ये हमने 2 शेल्स का डिस्क्रिप्शन स्टडी किया. अभी रैंडमली 1-2 शेल का और स्टडी करते हैं. थर्ड शेल. फॉर थर्ड शेल बेटा वैल्यू ऑफ n is 3. If the value of n is 3, L is 0 1 2. It means I am having 3 subshells. The name are 0 के लिए बेटा मैं क्या लिखूंगा? L 0 के लिए 3s, 1 के लिए 3p और 2 के लिए 3d. Now मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m. L 0 तो m 0 बेटा, L 1 तो m is -1 0 +1. If L is 2 then m is -2 -1 0 +1 +2. सो यहां पर बेटा आपका एक ऑर्बिटल, यहां पर 3 और यहां पर 5. टोटल वी आर हैविंग 9 ऑर्बिटल्स. हाउ मेनी ऑर्बिटल्स? 9. इफ आई विल ड्रॉ 1 ऑर्बिटल 3 एंड हेयर 5 ऑर्बिटल. क्लियर? अब एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स. यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहां पे 6 और यहां पे 10. सो 2 इलेक्ट्रॉन लाइक दैट. 6 1 2 3 4 5 6. दिस वन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10. तो स्पिन देखिए बेटा, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन है, स्पिन +1/2 -1/2. यहां पर 3 इलेक्ट्रॉन के स्पिन +1/2 and 3 electron will have the spin -1/2. So I will write spin is equal to 3 + 1/2
3 minus 1 by 2. Here 5 electron की spin clockwise, 5 की spin anti-clockwise. So I will write spin is equal to 5 plus 1 by 2, 5 minus 1 by 2. अगर आप इनका टोटल करेंगे, सो टोटल हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है 10 प्लस 6 16 और 2 18, तो 18 में से जो 9 इलेक्ट्रॉन है उनकी स्पिन है प्लस 1 by 2 और 9 इलेक्ट्रॉन की स्पिन क्या है बेटा, माइनस 1 by 2. और अगर नेट स्पिन की बात की जाए तो नेट स्पिन क्या होगी, 0, बिकॉज प्लस हाफ स्पिन इज कैंसल्ड बाई माइनस हाफ. तो ये जो मैंने आपके सामने किया दिस, अब आपने सीखा कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से चले, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से सेकेंडरी क्वांटम नंबर पर आए, फिर हम आए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और फिर हम आए स्पिन क्वांटम नंबर. सो ऑल दिस क्वांटम नंबर दीज आर इंटररिलेटेड. जैसे मैंने आपको कराया अभी शेल्स मेथड में, सिमिलरली ये सभी शेल्स में होगा. इट इज पॉसिबल इन 4th 5th एंड 6th. चलिए एक शेल में और चेक करते हैं, क्योंकि अब तक हमने एफ का एग्जाम्पल स्टडी नहीं किया. चलिए रैंडमली लेते हैं, 7th शेल को स्टडी करते हैं. व्हाट इज इन 7th शेल? 7th शेल, फॉर 7th शेल वैल्यू ऑफ n इज 7. सो बेटा l इज 0 1 2 3. बिकॉज l की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो आपको पता है, दैट इज 3 से ज्यादा नहीं होगी. सो दीज आर नेम्ड एज, दिस इज 7s, 7p, 7d और ये बेटा 7f. नाउ द वैल्यूज ऑफ m. l अगर 0 है तो m आपका 0, 1 में m, -1 0 +1, 2 में बेटा m, -2 -1 0 +1 +2 और L3 है तो m इज -3 -2 -1 0 +1 +2 और +3. अब इन वैल्यूज का टोटल करो. 1 ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल, 5 ऑर्बिटल एंड 7 ऑर्बिटल. सो टोटल वी आर हैविंग 16 orbitals. How many orbitals? 16. Just if I draw 1, this 7p has 3 orbital, 7d has 5 and 7f has 7 orbitals. Clear? So this is 1 orbital, you can say 3 5 and this one 7. अब आपको पता है एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2. सो दिस कंटेन मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स, दिस 6 electron, 10 electron and this contain 14 electrons. So total will be now 32 electron. अब spin प्लस हाफ माइनस हाफ. यहां पे देखिए कैसे फिल करेंगे, 1 2 3 4 5 स्पिन 6. तो स्पिन विल बी 3 + 1 by 2, 3 - 1 by 2. यहां पे बेटा फिल कैसे करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. तो स्पिन जो है बेटा 5 + 1 by 2, 5 - 1 by 2. सेम हेयर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 and 14. तो स्पिन इज 7 1 by 2, 7 - 1 by 2. क्लियर? सो टोटल जो आपके 32 इलेक्ट्रॉन है उसमें से बेटा 16 इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन है वो +1 by 2, 16 इलेक्ट्रॉन की स्पिन -1 by 2 और जो नेट स्पिन आएगी वो 0. तो ये मैंने अभी आपको एक पर्टिकुलरली कुछ शेल्स में कंप्लीटली समझाया कि आप कैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से सेकेंडरी पे आए, सेकेंडरी से फिर आप मैग्नेटिक पे आए, फाइनली स्पिन. नाउ विल शिफ्ट टू द सेकेंड पार्ट ऑफ आवर लेक्चर, दैट इज न्यूमेरिक एंड कॉन्सेप्चुअल. वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, बहुत ध्यान से करना है. न्यूमेरिकल पार्ट है, अभी स्टार्ट करते हैं इसको. सेकेंड इज न्यूमेरिक एंड कॉन्सेप्चुअल्स. चलिए लेट अस स्टडी. विल स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन नाउ. क्वेश्चन नंबर 1. Write all quantum numbers. बेटा बहुत ध्यान से देखना है. राइट ऑल क्वांटम नंबर्स. इसमें वी विल डू फर्स्ट n = 2, b
You can say what they have given, 4f. C they have given first electron of sodium, and D part they have given लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ बोरोन. क्लियर. चलिए, और एक पार्ट और है बोरोन के बाद, डी पार्ट सेकेंड इलेक्ट्रॉन. चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं. नाउ यू हैव टू राइट ऑल द वैल्यूज ऑफ ऑल दी क्वांटम नंबर. सभी क्वांटम नंबर्स की वैल्यू लिखनी है. इसमें बेटा कुछ पार्ट और इंक्रीज करते हैं. डी ई आई विल राइट 4p, एफ आई विल राइट 5px, G 3dz square, and H 4dxy. चलिए, these are sufficient. Now just see out. So first quantum number, sorry, we have to write all the quantum number. बड़ा important है, one by one करेंगे, not a typical one. A part, let's start the solution. A part में आपको n की वैल्यू गिवन है. इफ n इज इक्वल टू 2, ध्यान देंगे बेटा, l की वैल्यू क्या होगी, 0 और 1. ठीक है, 0 मीन्स 2s और 1 मीन्स 2p. ठीक है भाई, कोई इशू नहीं इस चीज में. क्लियर, गुड. अब l की वैल्यू अगर 0 है, m इज 0, और l की वैल्यू 0 तो m विल बी -1 0 +1. वेरी इजी, नॉट अ टिपिकल वन. चलिए, सो यहां पर एक ऑर्बिटल ड्रॉ कीजिए और यहां पर आप 3 ऑर्बिटल ड्रॉ कीजिए. क्लियर. अब इस एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स, और यहां पर 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6. सो यहां पर जो स्पिन होगी +1/2, -1/2. यहां पर आप स्पिन क्या लिखोगे बेटा, 3 +1/2 3 -1/2, और नेट स्पिन क्या लिखोगे, 0, क्योंकि प्लस ऑफ स्पिन इज कैंसल्ड बाई माइनस ऑफ स्पिन, रिमेंबर. ओके, सो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हुआ. नाउ विल डू द सेकेंड, बी. बी पार्ट 4f. अब ये जो 4f है ये आपको सबशेल दे रखी है. ठीक है, कैसे करेंगे. अब ये जो 4 है, ये 4 क्या है, इट सेज कि हम 4th शेल में काम कर रहे हैं. किस में काम कर रहे हैं, 4th शेल. तो इट मीन्स जो n की वैल्यू है वो 4 है. अब l की वैल्यू क्या होगी, देखो बेटा, आपको f क्लियरली गिवन है. क्या गिवन है, f. तो L आपको रिमेंबर हो 0 1 2 3 S P D और F. F दे रखा, 4F है, तो L की डायरेक्टली वैल्यू में क्या लिखूंगा, आई विल राइट L इज इक्वल टू 3, बिकॉज मेरे को सबशेल दे रखी है कि F सबशेल है. नाउ M विल बी -3 -2 -1 0 +1 +2 +3, 7 ऑर्बिटल्स this way, and 7 orbital contain 14 electron, like that 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 and 14. So spin will be 7 +1/2 7 -1/2, and the net spin is 0. So this we have done the B part. So बेटा A हो गया, बी हो गया. बी के जैसा ये है आपका ई. तो पहले ई को करेंगे हम, ई पार्ट. जस्ट सी ई पार्ट 4p. अब 4p में ये आपका 4th शेल. 4th शेल का मतलब n की वैल्यू क्या लोगे आप, 4. अब सबशेल कौन सी है, p इंडिकेटेड है, p सबशेल. सो रिमेंबर l इज इक्वल टू 0 1 2 3. सो आप L की वैल्यू क्या लेके चलोगे अब, S P D और F 1. इफ L इज 1, M is -1 0 +1. So we are having again 3 orbitals. Clear? And each orbital contain 2 electrons. So I will fill 1 2 3 4 5 6, total 6 electron. Spin is 3 plus of 3 minus of, and बेटा नेट स्पिन कम्स आउट टू बी 0. तो ये हमने किया आपका 4p और 4f सबशेल में कैसे करना है. क्लियर. नाउ नेक्स्ट, अब हम इसके बाद स्टडी करेंगे दिस पार्ट,
F 5px, F 5px, जस्ट सी आउट बेटा, ये जो px है ये आपको डायरेक्टली ऑर्बिटल मेंशन किया गया है, ध्यान कीजिएगा क्या मेंशन कर रखा है, ऑर्बिटल। चलिए, तो 5 का मतलब इट बिलोंग्स टू फिफ्थ शेल, सो n की वैल्यू क्या लोगे आप 5। सब शेल कौन सी है, p सब शेल है, सो l की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। अब m की वैल्यू क्या लोगे, आपका ऑर्बिटल कौन सा है, px ऑर्बिटल। तो ध्यान करो बेटा, मैंने डायग्राम ड्रॉ कराया था आपको, रिमेंबर px, py और pz, प्लस माइनस 1 और 0। तो px में m की वैल्यू क्या लोगे आप, प्लस माइनस 1। एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू, क्या हो गया, प्लस माइनस 1। तो ये एक ऑर्बिटल है, कौन सा ऑर्बिटल है ये, एक ऑर्बिटल। क्लियर। अब इस एक ऑर्बिटल में आप कितने इलेक्ट्रॉन डाल सकते हो, 2 इलेक्ट्रॉन। तो स्पिन विल बी +1/2 -1/2 और नेट स्पिन क्या हो गई, 0। ध्यान कीजिए, px का मतलब ऑर्बिटल दिया था आपको, क्या दिया था, दे हैव गिवन यू द ऑर्बिटल, वेरी इंपॉर्टेंट। सो उस ऑर्बिटल का ही हमें नोट करना था। और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन डाल सकते हो आप, 2 इलेक्ट्रॉन, सो दैट द स्पिन कम्स आउट टू बी दिस वन। सो ये हमने किया f पार्ट, f भी हो गया हमारा। नाउ वी विल डू g पार्ट। g पार्ट, जी में दे हैव गिवन यू 3dz²। अब ये 3 का मतलब इट बिलोंग्स टू थर्ड शेल, सो बेटा n की वैल्यू क्या हो गई 3। नाउ d क्या है आपकी सब शेल, d सब शेल, सो l की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। अब dz², ऑर्बिटल कौन सा है, dz²। सो रिमेंबर मैंने आपको डायग्राम कराया था d सब शेल में, लास्ट में हमने किया था dz², उसमें जो m की वैल्यू ली थी वो क्या ली थी हमने, 0। सो आई विल राइट m = 0, मीन्स एक ऑर्बिटल। और एक ऑर्बिटल में आप कितने इलेक्ट्रॉन डाल सकते हो, 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो स्पिन +1/2 -1/2, नेट स्पिन विल बी 0। क्लियर। नाउ बेटा ये हमारा g पार्ट भी हुआ। देन h पार्ट, 4dxy, again see out, 4 means it belongs to फोर्थ शेल। सो हम क्या लिखेंगे, n = 4 लिखेंगे हम, ठीक है। अब l क्या लिखोगे, यहां d सब शेल है, d सब शेल में l की वैल्यू क्या आएगी 2। नाउ ऑर्बिटल इज xy, dxy ऑर्बिटल। रिमेंबर ये d सब शेल ड्रॉ की थी हमने, और सबसे पहला क्या था dxy, जिसकी वैल्यू क्या थी +-2। सो m यू विल राइट +-2, मीन्स एक ही ऑर्बिटल विच कंटेन 2 इलेक्ट्रॉन्स हुज स्पिन +1/2 -1/2, और बेटा नेट स्पिन क्या होगी 0। सो ये आपको ध्यान करना है कि कब आपको शेल दी गई है, कब सब शेल, और यहां पर क्या दिया था आपको, ऑर्बिटल्स। नाउ h के बाद एक आई पार्ट और बनाते हैं। आई पार्ट में हम लेंगे 2px1, और जे पार्ट में लेंगे बेटा 3dxy1, और यू कैन से 2। चलिए, तो पहले हम आई पार्ट को करेंगे, अब विल डिस्कस पार्ट आई। सो व्हाट पार्ट आई सेज 2px1। सो देखिए बेटा, अब ये जो 2 है इट बिलोंग्स टू सेकेंड शेल। सो n की वैल्यू क्या होगी बेटा 2। सब शेल कौन सी है, p, तो l की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। अब ऑर्बिटल कौन सा है, px। तो याद कीजिए मैंने क्या बताया था आपको, px, py, pz, +-1 +-1 और इसके लिए 0। तो px में m की वैल्यू क्या हो जाएगी +-1, यानी एक ऑर्बिटल। अब एक इलेक्ट्रॉन है, दिस इज ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। तो ध्यान कीजिए, अगर एक इलेक्ट्रॉन होगा तो मैंने क्या कहा था, उसकी स्पिन +½ भी हो सकती है और -½ भी हो सकती है, ये आपको ध्यान रखना। Whenever 1 electron is there, spin may be +½ और spin may be
माइनस हाफ। ओके, चलिए नाउ आई पार्ट भी कंप्लीट। नाउ जे पार्ट, जे इज 3dxy2। सो बेटा ये जो 3 है इट इज थर्ड शेल। थर्ड शेल मीन्स n क्या लोगे 3, l d आपकी सब शेल है, सो d सब शेल के लिए l क्या हो गया 2, और ऑर्बिटल है आपका dxy। सो रिमेंबर dxy ऑर्बिटल के लिए वैल्यू क्या थी आपकी, द फर्स्ट वन वाज dxy प्लस माइनस 2। सो m क्या लिखोगे बेटा आप प्लस माइनस 2, और क्योंकि एक ही ऑर्बिटल है और कितने इलेक्ट्रॉन है 2 इलेक्ट्रॉन्स। सो बेटा अगर इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो स्पिन +1/2 -1/2 और नेट स्पिन विल बी 0। दैट यू हैव टू रिमेंबर नाउ। सो दिस वी हैव डन सम ऑफ द पार्ट्स। अब जो बचे हुए पार्ट्स हैं लेट्स सी। सो बेटा इट्स नॉट द टिपिकल वन, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है कि हमने कंसेप्ट को कैसे यूज करना, हाउ कैन वी यूज द कंसेप्ट। सो नाउ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ सोडियम, सी पार्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन? फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इज 1s1। अब मैं आपको थोड़ा बता भी दूं कैसे लिखा जाता है। इफ आई विल से कि आपको थर्ड इलेक्ट्रॉन लिखना है, क्या लिखना है थर्ड इलेक्ट्रॉन, तो 3 इलेक्ट्रॉन तक की कॉन्फ़िगरेशन पे जाओ, क्या बनेगी 1s2 2s1। तो ये जो 2s1 है ये आपका थर्ड इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली अगर मैं आपसे कहूं फोर्थ इलेक्ट्रॉन आपको नोट करना है, सो फोर्थ इलेक्ट्रॉन के लिए पहले आप क्या लिखोगे 4 इलेक्ट्रॉन की कॉन्फ़िगरेशन, सो वो बनेगी 1s2 2s2। तो ये जो 2s2 है ये क्या है आपका फोर्थ इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली अगर मैं आपसे कहता हूं बेटा 10th इलेक्ट्रॉन, सो पहले आप क्या करोगे 10 इलेक्ट्रॉन तक की कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 10 इलेक्ट्रॉन। ये आएगी बेटा आपकी 1s2 2s2 2p6। तो जो 2p6 है ये आपका 10th इलेक्ट्रॉन है। और एक चीज और, फोर्थ इलेक्ट्रॉन, थर्ड इलेक्ट्रॉन है, 10th इलेक्ट्रॉन, ये एक ही इलेक्ट्रॉन है। 10th इलेक्ट्रॉन का मतलब 10वां इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन। थर्ड इलेक्ट्रॉन मीन्स तीसरा इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन। फोर्थ इलेक्ट्रॉन मीन चौथा इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन। और जब भी एक इलेक्ट्रॉन होगा ध्यान रखिए स्पिन में भी +1/2 और -1/2, बड़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए अब अपने क्वेश्चन को करते हैं, सी पार्ट को, जस्ट सी आउट। ही सेज फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ सोडियम। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन क्या आएगा बेटा आपका 1s1 आए। तो 1s1 में बेटा n की वैल्यू क्या होगी 1, क्योंकि फर्स्ट शेल को बिलोंग करता है। l s सब शेल है आपकी, l की वैल्यू 0, m की वैल्यू 0, एक ऑर्बिटल आएगा। अब एक इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन का मतलब, इसको हटाइए यहां से कोई मतलब नहीं है। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन का मतलब मेरे पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन। सो 1 इलेक्ट्रॉन अगर होगा तो उसकी स्पिन इट मे बी +½ और बेटा इट मे बी -½। ओके, चलिए दिस सी भी हो गया हमारा। डी पार्ट, डी पार्ट, ही सेज लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ बोरोन। चलिए ये क्वेश्चंस कैसे करते हैं, सी आउट। सो बेटा बोरोन का जो एटॉमिक नंबर है वो 5 है, तो इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन सा होगा 5th इलेक्ट्रॉन। तो 5th इलेक्ट्रॉन के लिए पहले हम 5 इलेक्ट्रॉन की कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, 1s2 2s2 2p1। तो ये जो 2p1 है ये है मेरा 5th इलेक्ट्रॉन, क्लियर। और यहां पर ये कौन सा इलेक्ट्रॉन है लास्ट इलेक्ट्रॉन। तो मीन्स मुझे किसके लिए लिखना है 2p1 के लिए। ओके, चलिए। सो यहां पे l का n की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, सेकंड शेल। l बेटा p सब शेल है 1, m अब आप कैसे लिखोगे 2p। देखिए यहां पर आपको ऑर्बिटल नहीं दे रखा है, क्या लिखा हुआ है px py और pz नहीं। सो आप l क्या लिखो, m क्या लिखोगे -1 0 +1, क्लियर। और क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, तो स्पिन +½ और -½ क्लियर। सो दिस इज अबाउट द, यू कैन से द लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ बोरोन। ठीक है, चलिए
अब इसके बाद डी, सेकेंड इलेक्ट्रॉन। सो बेटा सेकेंड इलेक्ट्रॉन के लिए आप क्या करोगे, 1s2, तो ये 1s2 आपका सेकेंड इलेक्ट्रॉन हुआ। n क्या आएगा, 1, l 0, m 0। अब सेकेंड इलेक्ट्रॉन का मतलब एक इलेक्ट्रॉन, तो स्पिन विल बी आइदर +1/2 और -1/2, दैट यू हैव टू रिमेंबर। नाउ अब इसमें एक दो पार्ट और मेरे को ध्यान आ रहे हैं, मैं भी डिस्कस करता हूं। आई जे के में मैं लगाता हूं मिनिमम एनर्जी इलेक्ट्रॉन इन सोडियम, सोडियम का मिनिमम एनर्जी इलेक्ट्रॉन के, मिनिमम एनर्जी इलेक्ट्रॉन इन सोडियम, और इसी में कर लेते हैं एंड मैक्सिमम एनर्जी इलेक्ट्रॉन इन सोडियम। तो सोडियम में हमें मिनिमम एनर्जी इलेक्ट्रॉन और मैक्सिमम एनर्जी इलेक्ट्रॉन के क्वांटम नंबर लिखने हैं। तो यू नो दैट सोडियम की जो एटॉमिक नंबर है वो 11 है। कॉन्फ़िगरेशन आएगी बेटा 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। तो ये जो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में डालोगे, 1s1। तो जो आपका मिनिमम एनर्जी इलेक्ट्रॉन है वो मिनिमम एनर्जी इलेक्ट्रॉन क्या होगा, 1s1। और आपने यहां पर लास्ट में इलेक्ट्रॉन किस में डाला है, 3s1, तो ये 3s1 क्या है आपका मैक्सिमम एनर्जी इलेक्ट्रॉन। ध्यान करो हमने इलेक्ट्रॉन किसके अकॉर्डिंगली फिल किए हैं, वी हैव फिल द इलेक्ट्रॉन अकॉर्डिंग टू द आउफबाउ रूल, और आउफबाउ रूल के अकॉर्डिंगली ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी है, यानी जो लास्ट का इलेक्ट्रॉन है वो मैक्सिमम एनर्जी इलेक्ट्रॉन, और जो सबसे पहला 1s1 वो आपका मिनिमम एनर्जी इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सो चलिए जस्ट राइट डाउन द क्वांटम नंबर्स। तो मिनिमम एनर्जी इलेक्ट्रॉन ये हुआ बेटा 1s1। तो 1s1 के लिए n की वैल्यू 1, s आपकी सबशेल है तो l की वैल्यू बेटा 0, m 0, 1 ऑर्बिटल। अब एक इलेक्ट्रॉन है तो स्पिन +1/2 -1/2। ओके, चलिए नाउ मैक्सिमम एनर्जी इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम एनर्जी इलेक्ट्रॉन ये आएगा आपका, अभी हमने लिखा था 3s1। सो यहां पर बेटा n की वैल्यू 3, s आपकी सबशेल है तो l 0, m 0, एक ऑर्बिटल और एक इलेक्ट्रॉन है, सो स्पिन इज +1/2 एंड -1/2। सो बेटा ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया, जो सबसे ज्यादा यू कैन से पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, जिसमें आपको क्वांटम नंबर लिखने होते हैं, जो मैंने अलग अलग वे से आपको समझाया। क्लियर, थोड़ा लेंथी जरूर था बट हमें करना जरूर है। तो क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने किया। नाउ द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 सेज राइट प्रॉपर abbreviations. First part N4L0, second N7L3, third N2L1M0, fourth N4L2M0। चलिए एब्रीवेशन आपको बताना है कि किसको बिलोंग करते हैं, तो यहीं पर इसका सॉल्यूशन होगा। फर्स्ट पार्ट देखिए बेटा, N0 का मतलब फोर्थ शेल, 4 लिख दिया आपने। अब L अगर आपका 0 है तो कौन सी सबशेल होगी, S, तो ये किसको इंडिकेट कर रहा है, 4s, यानी ये जो एब्रीवेशन है ये सबशेल के लिए थी। ठीक है, सेकेंड पार्ट आइए, कौन सी शेल है, 7। L3 किसके लिए होता है, F के लिए, तो 7f। अब यहां पर आइए भी सबशेल था। थर्ड N2, L0 मींस P। अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर दे रखा है, तो ध्यान कीजिए P के लिए हमने क्या किया था, Px, Py, Pz, तो +-1 और 0, ये आपकी m की वैल्यूज थी।
सो यहां पर m की वैल्यू 0 दे रखी है, तो क्या होगा pz मीन्स दिस इज 2pz। बड़े ध्यान से करना है, पहली दोनों क्या थी, दीज आर सबशेल्स, दीज आर ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल कैसे पता चला आपको, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का वैल्यू गिवन है, बहुत ध्यान से करना है इस चीज को। ओके चलिए अब इसके बाद फोर्थ N4 फोर्थ शेल, L2 2 में क्या हो जाएगा D 4D। अब M0 दे रखा है तो D का ड्रॉ करके देखते हैं। D के हमने ड्रॉ किए थे, वैल्यू थी माइनस, जो यहां पर क्या है ये आपका, सॉरी व्हाट इज M0, तो M जो 0 आया था वो dz² के लिए आया था। किसके लिए आया था, dz²। और ऑर्बिटल फिर से रिमाइंड करा दूं मैं आपको, जो ऑर्बिटल्स थे dxy, dyz, dzx, dx² माइनस y² और dz²। सो यहां पे m की वैल्यू दे रखी है 0, इट मीन्स इट इज 4dz²। वेरी इंपॉर्टेंट। ओके चलिए अब इसी में एक पार्ट और स्टडी करेंगे, फिफ्थ पार्ट। He says N4 L1 M0 स्पिन प्लस हाफ और माइनस हाफ। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। चलिए N4 का मतलब फोर्थ शेल, L1 का मतलब P सब शेल, M0 का मतलब PX, और स्पिन प्लस हाफ और माइनस हाफ मीन्स एक इलेक्ट्रॉन। सो ऊपर क्या लिखेंगे 1, 4px1। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ध्यान कीजिए, प्लस हाफ और माइनस हाफ का मतलब एक इलेक्ट्रॉन है, ध्यान करना इसमें, नेवर गेट कंफ्यूज्ड। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 1, 2 आर कंप्लीटेड। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 3, which of the following quantum number set is incorrect। आपको बेटा कुछ क्वांटम नंबर के ना सेट गिवन है एंड यू हैव टू फाइंड आउट विच इज करेक्ट और विच इज इनकरेक्ट। सो जस्ट सी द फर्स्ट वन। He says n equals to 0, L equals to 0, M0, S plus 1/2। पहले इसी को चेक करते हैं। हमें जो पहली वैल्यू है, ध्यान कीजिएगा, हमें किससे काम करना होता है, फर्स्ट वैल्यू से। आपको फर्स्ट वैल्यू के लिए बाकी सारी वैल्यूज को चेक करना है। तो क्या n0 एग्जिस्ट करेगा, n0 एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो ये भी एग्जिस्ट नहीं करेंगे, मीन्स आपका जो सेट है वो क्या है, इनकरेक्ट। बी पे आइए, बी है n इक्वल्स टू 1, L0, M0, स्पिन -1/2। अब चलिए देखते हैं, n इक्वल्स टू 1 फर्स्ट शेल, ओके। अगर n इक्वल टू 1 तो L की वैल्यू भी 0, ठीक है। m की वैल्यू भी क्या है, 0। m की वैल्यू 0 का मतलब एक ऑर्बिटल। कितना ऑर्बिटल बेटा इसमें, एक ऑर्बिटल। और एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब स्पिन +1/2 -1/2 और नेट स्पिन 0। यहां पे आपको जो स्पिन दे रखी है वो क्या दे रखी है, -1/2। तो क्या ये -1/2 स्पिन यहां पे हो सकती है, चेक करो। प्लस हाफ और माइनस बिल्कुल गिवन है, ठीक है। बट अब एक क्वेश्चन यहां पे हमारे सामने ये आता है कि ये जो आपको इन्होंने स्पिन दे रखी है, ये नेट स्पिन दे रखी है या वैसे। तो मैं क्लियर आपको कर देता हूं, यहां पे बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहां पे जो इन्होंने दे रखा है यहां पर कि ये जो स्पिन नेट स्पिन है, वो तो लिखने पर मेंशन होगा कि नेट स्पिन है या नहीं। अब यहां पे इन्होंने नेट स्पिन नहीं है, ये नेट स्पिन के लिए NET लिखेंगे, मीन्स ये नेट स्पिन नहीं है, तो ये कंसेप्ट तो खत्म हो गया। अब यहां पर आया प्लस हाफ कॉमा माइनस हाफ, तो मुझे ये चेक करना है कि N1 के लिए L0 था, होता है L0, और M0 भी होता है, और स्पिन -हाफ। अब ये चेक करना है क्या स्पिन -हाफ है या नहीं है। तो स्पिन क्या है हमारी, -हाफ है, तो मीन्स दिस सेट इज आल्सो द करेक्ट।
तो आपने चेक कैसे किया, स्टार्टिंग वैल्यू से आपको चेक करना है। जो वैल्यू स्टार्टिंग में दे रखी है उसके लिए बाकी सारी वैल्यूज को क्या करना है, चेक। और नेट स्पिन अगर दे रखा हो तो ठीक है, अदरवाइज आप नॉर्मल स्पिन मान के चलेंगे। क्लियर? चलिए नाउ वन मोर वी विल सी। सो दिस इज 2 cases we have done. One more example, just see out. M0 S plus हाफ। चलिए अब ये M0 का मतलब मेरे पास एक ऑर्बिटल है, क्लियर, और उस ऑर्बिटल की स्पिन आपको दे रखी है। तो एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन के लिए जो स्पिन बनेगी वो क्या बनेगी, +1/2 और -1/2, और नेट स्पिन क्या बनेगी, 0। अब ये नेट स्पिन नहीं है तो कंसेप्ट खत्म हो गया। अब चेक करो प्लस हाफ और माइनस हाफ, ये प्लस हाफ ये प्लस हाफ है, मीन्स द सेट इज करेक्ट। तो काम कैसे करना है, जो आपको पहले गिवन है उसके लिए बाकी वैल्यूज लिखनी है, यू हैव टू चेक कि वो मैच कर रही है या नहीं कर रही है। सो दिस इज अबाउट द क्वेश्चन नंबर 3 बेटा, बहुत इजी था। हिंट भी मैंने आपको बताया, जो क्वांटम नंबर पहले दे रखा है उसके लिए बाकी वैल्यूज लिखनी है और फिर उनको चेक करना है। चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 4 नाउ, विच डज नॉट एग्जिस्ट एंड वाई। कौन एग्जिस्ट नहीं करता रीजन के साथ, 1D, देन वी विल डिस्कस 2F, देन वी विल डिस्कस 3S। चलिए 3 में डिस्कस करना है, यू हैव टू डिस्कस इन द 3। अब 1D चेक करते हैं, कैसे चेक करोगे, यहां से फर्स्ट शेल n इज इक्वल टू 1, L बेटा n अगर 1 हो तो L की वैल्यू क्या होगी, 0, 0 का मतलब S सब शेल, बट यहां कौन सी सब शेल दे रखी है, D, गिवन इज D, और D के लिए L की वैल्यू क्या होती है, 2। तो क्या आपकी L की वैल्यू 2 है, नहीं है, ठीक है, L की वैल्यू क्या है, 0। D के लिए L की वैल्यू क्या होनी चाहिए थी, 2, जो कि नहीं है, देयरफॉर दिस डज नॉट एग्जिस्ट। रीजन क्या बताओगे, फॉर D L कितना होना चाहिए, 2, बट हमारे पास L कितना है, 0। तो 0 के अकॉर्डिंगली S हो सकता है, D नहीं हो सकता, तो ये आपका एग्जिस्ट नहीं करेगा। सिमिलरली 2F पे आइए, ये n क्या लोगे आप, 2। n अगर 2 है तो बेटा L 0 और 1 होगा, 0 1 में ये होगा आपका S और P, बट यहां कौन सी सबशेल है, F, गिवन सबशेल इज F। F के लिए L क्या होता है, 3, क्या 3 है हमारे पास, नहीं है, सो दिस डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर? ये आपको ध्यान करना है, इससे चेक करना है n की वैल्यू से। अब n2 में हमारी L की वैल्यू 0 और 1 थी, जबकि F के लिए L की वैल्यू क्या चाहिए, 3, जो हमारे पास नहीं है, इट मीन्स ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। नाउ 3S में n क्या है बेटा आपका 3, तो L क्या हो जाएगा, 0 1 2, मीन्स S P D तीनों पॉसिबल है। हमें गिवन क्या है, S, देखिए मैच हो गया, सो दिस विल एग्जिस्ट। सो इस तरह से आपको क्वेश्चन करना है। वैसे तो बेटा आपको देखते ही पता चल जाएगा कि एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, बट रीजन इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। सो दिस वी हैव डन क्वेश्चन नंबर 4। नाउ द नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5, कैलकुलेट द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। हमें ऑर्बिटल्स का नंबर कैलकुलेट करना है। फर्स्ट है N3 L2, ठीक है। चलिए बेटा N3 का मतलब थर्ड शेल, L2 का मतलब कौन सी सबशेल होगी, D सबशेल। तो D सबशेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं आपके, 1 2 3 4, 5 ऑर्बिटल्स होते हैं आपके। कैसे पता चला, m इज इक्वल टू -2 -1 0 +1 +2, हाउ मेनी ऑर्बिटल्स, 5 ऑर्बिटल। वेरी इजी क्वेश्चन, कोई इसमें मुश्किल नहीं है, कर सकते हैं। सो सेकेंड पार्ट, N5L1, बेटा N5 का मतलब फिफ्थ शेल, L1 का मतलब P, तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 0 +1, मीन्स वी आर हैविंग 3 ऑर्बिटल्स। कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है इस चीज में। चलिए नाउ
नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6. इफ n इज इक्वल टू 5, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स will have m+1. चलिए, आपको इलेक्ट्रॉन बताना है जिनमें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होगी, +1. बड़ा इंपॉर्टेंट, n5 का मतलब फिफ्थ शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिनमें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या है, +1. बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे. सो n इज 5. सो बेटा L क्या होगा, 0 1 2 3. अब इसमें एक चीज मैं आपसे क्लियर करूंगा, क्योंकि यहां पर इन्होंने पूछ रखा है मैक्सिमम. क्या पूछ रखा है, मैक्सिमम. थोड़ा इस चीज पे हम ध्यान देंगे कि मैं यहां पे 4 लूं या ना लूं, इस चीज पे मैं भी क्वेश्चन मार्क लगा के रखता हूं. हमारे सिलेबाई के अंदर अगर बात की जाए तो हमारी जो L की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, वो 3 है. ये आपको ध्यान रखना है. तो 4 आपको यहां पे नहीं लेके चलना, इस चीज को ध्यान रखिएगा. तो आप m क्या लोगे बेटा, यहां पे 0, इसमें m क्या आएगा, -1 0 +1, इसमें m क्या आएगा, -2 -1 0 +1 +2. यहां पे m कितना आएगा, -3 -2 -1 0 +1 +2 +3. अब देखिए कितने ऑर्बिटल में m की वैल्यू +1 है, 1 2 3. कितने ऑर्बिटल, 3. मीन्स 3 ऑर्बिटल्स will have the value of ml+1. तो एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2. सो बेटा 3 ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 6. क्लियर टू ऑल ऑफ यू, कोई डाउट इसमें. तो ये आपको ध्यान में रखना है कि आपको यहां पर L की मैक्सिमम वैल्यू क्या लेके चलनी है, 3. बिकॉज मैं क्लियर करूं, अभी मैं इस क्वेश्चन को डिस्कस कर रहा था, तो एक बुक ने क्या ले रखा है, L का वैल्यू 4 ले रखा है. तो 4 बेटा जो आपकी सबशेल है G, वो हमारे सिलेबाई में नहीं है, इंक्लूडेड नहीं है, प्रॉपरली डिस्कवर्ड भी नहीं है, तो हम उसको स्टडी नहीं करेंगे. तो ये ध्यान रखना है, L की मैक्सिमम वैल्यू क्या लेके चलनी है, आपको 3 लेके चलनी है. सो स्टूडेंट, दिस वी हैव डन यू कैन से बिग टॉपिक, दैट इज quantum numbers, one of the important topic, and we have done a lot of numericals of all the types. Just revise the topic carefully. और अगर आपको इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर इंफॉर्मेशन चाहिए, then quantum number are the best alternates. Clear to all of you? So this is all about the topic quantum numbers. That's all.